Good evening, everyone. Welcome to all of you for Sunday evening talk for this beautiful evening. So, for the benefit of first timers, I will give you a brief introduction about Brahma Kumari's organization. So, we are a socio spiritual international organization focused on personal transformation through Raj Yoga meditation and thereby bringing world renewal. So we have centers in more than 130 countries as well as like more than 4,000 centers. So all over world, wherever you go, you can find a meditation center and you can just connect with God. The organization was founded in 1937 and headquarters is in Mount Abu, Rajasthan. We provide our services through different wings called IT, education, medical, sports, judiciary, media, etc., etc. Shanti Sarovar, this premises where we are sitting, it's like almost 32 acre of property and it is the biggest retreat center in South India. So we are blessed to have it nearby. Brahma Kumaris provide many services here in this center: seminars, meditation camps, workshops specific to different corporates also. And for sports, we have provided many workshops for educators and children who are pursuing their careers in sports and all. So it is good. You can take benefit from like all walk of life. So let's come to the topic of today, आर्ट ऑफ सेल्फ टॉक. सो कौन कौन है जो अपने आप से बात करता है? ओके. एंड हम सारे दिन में सबसे ज़्यादा किससे बात करते हैं? अपने आप से, राइट? सो इफ़ वी कैन लर्न द राइट वे ऑफ टॉकिंग टू अवर सेल्फ, we can indeed lead a happy and beautiful life. So this topic is very exciting. So let's welcome our speaker, Akanksha Tiku. She is very humble and down-to-earth person and wanted to share how she is like leading her life the way, right? So she has done BTech in Computer Science Engineering from North Cap University. She is currently working as Quality Assurance Engineer in Amazon in Alexa. So Alexa for Everyone project. So you can also talk to her about that too. She has 5 years of work experience in fintech, gaming, and e-commerce industries. She is practicing Raj Yoga meditation since childhood. She is always a topper, whether it is school, college, or any other cultural activity also. She has won multiple district, state, and national awards in singing, and she is also a songwriter too. So she has very multidimensional qualities, so we can learn from her. And please note, at the end of the session, we will be having the question answer session, so you can ask your questions there. So let's start our session. Let's learn from Akanksha Didi and let's welcome her. Good evening. So before I start on with the topic of self-talk, I feel that there is a need to know why self-talk is important. So like most of you said that which language are you comfortable, English or Hindi? Anybody who does not understand English? Only Hindi? Okay. Any more with only Hindi? Okay. So you are a very special person. So for you, I'll take it in all Hindi. Perfect. हाँ perfect. हाँ बिल्कुल. तो सेल्फ टॉक क्यों ज़रूरी है? अभी बहुत लोगों ने बताया कि हम ऑलरेडी करते हैं, ये तो करते ही है, सबसे ज़्यादा अपने आप से ही बातें करते हैं. तो सेल्फ टॉक क्यों ज़रूरी है? अगर हम अपने आप से पूछे, हाँ, वी टॉक टू आवर सेल्फ पॉजिटिवली. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट?
हाँ, ओके। और कुछ? मतलब जब हम उससे बात कॉन्शियसली करते हैं तो पॉजिटिव ही रहती है हम्म। मैक्सिमम टाइम, तो इस वजह से सेल्फ टॉक करना काफी इम्पोर्टेंट नेगेटिव नहीं हो सकती खुद से कई बार? होती है। हम्म। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 90% तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली सेटअप है। हम्म। जब हम बाहर से सेल्फ टॉक बात करते हैं, जैसे सेल्फ टॉक आता है, तो इट इज मोस्टली 90% पॉजिटिव। दिस इज ओके, करेक्ट। तो इन शांति सरोवर ओनली मैंने एक बहुत अच्छा कोट पढ़ा, कहीं आपको रास्ते में दिखेगा शायद आते हुए या जाते हुए, कि हाउ वी टॉक टू आवर सेल्फ इज़ हाउ वी कम इन, लाइक हाउ वी बिहेव, लाइक शी सेड, इज़ द वे हाउ वी बिहेव और हाउ वी कम इन टू आवर, लाइक जैसे हम खुद से बात करते हैं वैसे ही हम दूसरों से भी बातें करते हैं, वैसे ही हमारे रिलेशनशिप्स भी होते हैं। तो जैसे हम खुद से बात करते हैं वैसी बातें हम नेचुरली, विदाउट अवेयरनेस ऑल्सो वी स्टार्ट टॉकिंग टू अदर्स ऑल्सो लाइक दैट। तो आजकल के इस टाइम में बहुत से वायरसेस है बाहर, ऐसे वायरसेस जो फिजिकल बॉडी वाले नहीं, जो हमारी मेंटल हार्मनी को ख़राब कर रहे हैं, जो हमारे मेंटल बैलेंस को ख़राब कर रहे हैं, जो हमारी मेंटल कैपेसिटी को कम कर रहे हैं, हमारी खुशी को छीन रहे हैं, और बहुत से ऐसे हार्म कर रहे हैं जिससे जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हम अचीव नहीं कर पा रहे। ऐसे कौन कौन से वायरसेस हैं? ओके, और सोचो कुछ ऐसा जो बाहर नहीं है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, आप उसके बाद मुझे लगता है सब बता सकेंगे। एक है वायरस लोनलीनेस का, जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ बहुत लोगों में है। अकेलापन बहुत महसूस होता है और बहुत डर लगता है अकेले जाने से, अंधेरे से। और है वायरस ओवर थिंकिंग का। है ये वायरस है? अग्री? और बताओ अब। बिल्कुल, अब करेक्ट सब बोल रहे हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फियर। और कौन कौन से होते हैं? सारे वायरसेस के नाम बता दो। एंगर, जेलसी, हेट्रेड, कंपटीशन, ऑलवेज कंपेयरिंग योर सेल्फ, हमेशा अब दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना, जजमेंट करना। और क्या होते हैं? लैक ऑफ इंटरेस्ट, काम ना करने का मन करना, ये भी एक छोटा सा वायरस है। हमेशा डीमोटिवेटेड रहना, उमंग उत्साह ना होना, खुशी ना होना। और बड़े बड़े वायरसेस क्या होते हैं? सुसाइडल टेंडेंसीज, किसी से बात ना करने का मन करना, अकेले रहने का मन करना। आजकल बच्चों में ये बहुत हो रहा है, जो हमारी एज के, जो कॉलेज में हमसे छोटे हैं। तो मैं गुड़गांव से हूँ वैसे, तो वहाँ पे एक थॉट लैब है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ एक बार मैं पूछूँ कि जब हमारे टाइम पे होता था तब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी और अब क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं देखती हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग यही फेस करते हैं, बच्चे यही फेस करते हैं कि एक तो लोनलीनेस बहुत फील करते हैं कि हमें एक पार्टनर की ज़रूरत है, कोई बात करने वाला नहीं है हमारे साथ, और कोई ट्रस्टवर्दी, मतलब उनको किसी पे ट्रस्ट हो। आजकल ऐसे लोग नहीं मिलते, उनको बड़ी मुश्किल से बोलते हैं कि एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड मिलता है हमें। और इसके बाद क्या होता है? ओवर थिंकिंग छोटी छोटी बातों पे। तो ये सारे वायरसेस है, सब अग्री करते हैं ना? तो यहाँ पे कौन कौन ऐसे हैं जो समझते हैं कि लाइफ में कभी ना कभी हमें भी ये अटैक हुआ है वायरस का? सबको ही हुआ होगा। कोई ऐसा है जिसको अभी तक नहीं हुआ है? नहीं हुआ है आपको? बहुत अच्छा है। ये तो सबको हुआ होता है ना कोई छोटा बड़ा वायरस का अटैक तो हो ही जाता है। तो अच्छी खुशखबरी ये है कि ये वायरस क्योरेबल है, इसका इलाज है मार्केट में, और इलाज करते हैं तो ये ठीक भी हो जाता है। तो इस वायरस की क्या खासियत है, मैं सोच रही थी इस पर, कि जब ये आता है बॉडी में तो बहुत से अपने साथियों को भी लेके आता है, अकेला नहीं आता ये कभी। बहुत सारे दोस्त हैं इसके, बहुत सारे दोस्तों को साथ लेके आता है। ओवर थिंकर जब होता है, जब बहुत सोचता रहता है, छोटी बात को भी बड़ा बना देता है कि ये क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोला,
बहुत छोटी बात हुई होती है, बट उसको सोचता रहता है, उसको इतना निचोड़ देता है, फिर उससे क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है। तो एक ओवर थिंकिंग का एक वायरस था, वो साथ में स्ट्रेस भी ले आया, टेंशन भी ले आया, और फिर ऐसे इंसान को नींद आती है, आराम से पीसफुल स्लीप कर सकता है वो, नहीं कर सकता। तो इंसोम्निया भी ले आया, नींद ना आने की बीमारी, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है आजकल। तो ये सारी जो डिजीज़ेस है और हम देख रहे हैं आसपास है लोगों में, तो इन सब से हम कैसे बचें, इसकी कोई दवाई है? तो आज आप लोग टॉक के लिए तो आए हो, तो मैं कहूँगी कि आप लोग एक हॉस्पिटल में आए हो दवाई लेने। तो इन सब की दवाई सेल्फ टॉक है, बट करेक्ट सेल्फ टॉक तो हम करते ही है, कुछ कुछ हम बातें करते रहते हैं। कई लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि अरे ये कैसा इंसान है, बड़बड़ाए जा रहा है अपने आप से, है ना। कई लोग इसको उल्टा भी ले लेते हैं। बट सेल्फ टॉक कैसे करना है हमें, और क्या वो करेक्ट तरीका है जिससे हम एम्पावर हो, जिससे हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सके। तो इन सारी बीमारियों की जो आजकल फैली हुई है, जिससे हमारी मेंटल कैपेसिटी डाउन जा रही है, इन सबका एक ही इलाज है, सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक से होते ही इन सब का इलाज हो जाता है। तो अब सेल्फ टॉक में टॉक है तो दो लोग होंगे, एक जना तो नहीं करेगा। तो टॉक में दो लोग कौन है? मी एंड माई माइंड। दो लोग हैं, जैसा हमारे टॉपिक में है, मैं और मेरा मन। तो अभी चलो दो चीज़ें हैं इसमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि मालिक कौन है, मैं मालिक है या मेरा मन मालिक है? मतलब मन मालिक है या मैं मालिक है? कंट्रोल कौन किसको कर रहा है? एक बार सोच के सभी बोलेंगे। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम माइंड कर रहा है ना कंट्रोल। और वैसे क्या करना चाहिए? तो मालिक कौन हुआ है? माइंड हुआ मालिक, मैं हूँ। हाँ, तो होना चाहिए मालिक मुझे। और क्योंकि दो चीज़ें हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि ये दिस इज़ माई नोटबुक, तो मतलब मैं इसको ओन करती हूँ ना, ये मेरी है। इसमें कोई लिखेगा तो मैं बोलूँगा कि एक्सक्यूज़ मी, दिस इज़ माई नोटबुक, इस पर मत लिखो, ये मेरी है। तो मेरी चीज़ है ना, मेरी अथॉरिटी है उस पर, मेरा राइट है उस पर। तो मैं डिसाइड करूँगी कि मैं उसको कैसे यूज़ करूँगी, किसको दूँगी, कब लिखूँगी, कब नहीं लिखूँगी। तो इसीलिए जब मैं कहती हूँ माई माइंड, तो इस क्वेश्चन में ही आंसर है। तो इट इज़ माई प्रॉपर्टी। तो एक तरीके से अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो ये किंगडम की तरह है। जैसे एक राजा का राज्य होता है ना, वैसे एक किंगडम की तरह है। तो इसमें मैं कौन हूँ? आई एम द किंग। मेरी बॉडी है तो मैं तो किंग हूँगी ना, कोई और तो इसको रूल नहीं करेगा। सो डेफिनेटली मैं आई एम द किंग। और फिर माइंड मेरा सबॉर्डिनेट है, उसको मिनिस्टर कहो या कर्मचारी कहो। तो मिनिस्टर कहते हैं तो माइंड भी खुश हो जाता है, अच्छा डिजिग्नेशन देते हैं ना उसे। तो माइंड मिनिस्टर मैच भी करता है ना, MM। तो माइंड हमारा मिनिस्टर है और ये बॉडी मेरी किंगडम है। तो इस किंगडम को चलाने के लिए मुझे कभी तो मन से पूछना चाहिए ना कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, आज तुमने क्या किया, कैसा रहा। हम पूछते हैं ये? अच्छा, माइंड के बारे में कभी किसी ने स्कूल में, कॉलेज में कभी कहीं पढ़ा है? पढ़ा है? मेरे को तो इंजीनियरिंग में पढ़ाया ही नहीं किसी ने, ना स्कूल में पढ़ाया, ना प्री स्कूल में पढ़ाया, कहीं नहीं पढ़ाया। किसी और प्रोफेशन में, डॉक्टर्स में शायद पढ़ाते हो माइंड के बारे में, किसी को नहीं पढ़ाते ना, ये टॉपिक्स पढ़ाते ही नहीं। और देखो कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो भी लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी सुने और उनकी स्ट्रगल स्टोरी सुने, तो हर व्यक्ति के पीछे हम एक इस फैक्टर को देख सकते हैं कि हर व्यक्ति सेल्फ टॉक ज़रूर करता था, खुद से वो बातें ज़रूर करता था, और उसके लिए दिन का एक स्पेशल टाइम रखता था, मॉर्निंग का, उठ के रात को सोने से पहले। हम जितने भी अच्छे अच्छे लीडर्स को देख ले, जो एथलीट्स हैं, जिनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, जिनका गांव बहुत दूर था शहर से, ट्रेनिंग के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, वो सब अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे? वो सेल्फ टॉक से मोटिवेट करते थे। उन्होंने अपनी जो प्रोग्रेस है वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रखी। अगर वो ये सोचते कि मम्मी उठाएगी तो उठ जाएंगे, नहीं उठाएगी तो नहीं उठेंगे,
बट उन्होंने क्या किया, वो चार्ज उन्होंने अपने हाथ में ले लिया कि मुझे खुद पे खुद ही मेहनत करनी है। और रियलिटी यही है कि हमारे ऊपर और कोई मेहनत नहीं करता ना। हमारे पेरेंट्स गाइड कर सकते हैं, सही चीज़ बता सकते हैं, बट अगर हमें प्रोग्रेस करना है तो अपने ऊपर खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि खुद से जितना प्यार होता है उतना किसी का नहीं होता आपसे। तो एक बहुत सुंदर मैंने एक स्टोरी सुनी थी इसके ऊपर कि एक किसान था और उसका एक खेत था और वो अपनी पत्नी के साथ रहता था और उसके 2 बच्चे भी थे। तो उसके खेत में एक बीचों बीच एक पेड़ था जो उसके खेत में एक ऑब्स्ट्रक्शन थी उस पेड़ की वजह से, तो उसको वो हटाना था। तो उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा कि इस पेड़ को ना आप हटा दो यहाँ से और शाम तक आप इसको हटा देना, मैं शाम को आऊँगा और कल मैं इस पूरी ज़मीन पे हल चला के इसको उपजाऊ बनाऊँगा। तो अब उस पेड़ में एक चिड़िया का घोंसला था। वो चिड़िया थी और 3 बच्चे थे उसके। तो बच्चों ने सुना तो बच्चे बड़े घबरा गए और मम्मी के पास चले गए और बोला कि ये पेड़ ना उखड़ने वाला है और हमारा घोंसला टूट जाएगा। तो मम्मी ने उनसे पूछा कि कौन आएगा उठाने, तो उसने बोला किसान ने अपने बड़े बेटे को बोला है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि मैं गारंटी करती हूँ कोई नहीं आएगा उखाड़ने, आप निश्चिंत हो जाओ, आप अपना खेलते रहो मस्त। तो वो निश्चिंत हो गए और शाम तक पेड़ वैसे का वैसे ही था। फिर किसान आया, उसे गुस्सा आया कि उसने किया नहीं। उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया कि अब ये जिम्मेवारी तुम्हारी है कि तुम अब इस पेड़ को शाम तक तुम्हें इसको साफ करना है। तो बच्चे फिर से घबरा गए, चिड़िया के बच्चे, कि अब उसने छोटे बेटे को बोल दिया, अब क्या करे। तो फिर उसने फिर से बोला कि आप चिंता मत करो, इस पेड़ को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं आपको गारंटी करती हूँ, आप अपना खेल में मस्त रहो। तो बच्चे मस्त हो गए कि जब हमारी माँ को चिंता नहीं है तो हमें क्यों चिंता हो। फिर अगले दिन किसान आया तो उसने बोला मेरे तो दोनों ही बच्चे नालायक है, अब मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ वही ये काम कर सकती है। तो अपनी पत्नी को कहता है कि आप कुछ भी करके इस पेड़ को शाम तक क्लीन कराओ। तो चिड़िया के बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं कि अब तो हो ही जाएगा, अब तो उसकी पत्नी खुद आ रही है। तो उसकी मम्मी कहती है कि अभी भी कोई नहीं आएगा, आप देखना, आपके हमारे घोंसले को कुछ नहीं होगा। तो बच्चे बड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि मम्मी के पास बड़ा कॉन्फिडेंस है, ज़रूर ये इस पेड़ को कोई हिला नहीं सकता, इसमें कोई जादुई शक्ति होगी। तो फिर नेक्स्ट डे वो आता है किसान, देखता है वो पेड़ वहीं का वहीं है। तो इतना परेशान हो जाता है, बोलता है कि मेरे तो कोई भी घर में लायक नहीं है, अब ये काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। और जैसे ही वो बच्चे सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो इस पेड़ को कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, इतनी सारी 3 टाइम्स का एक्सपीरियंस है हमारे पास। तो वो अपनी मम्मी से कहते हैं कि अपना किसान खुद आएगा पेड़ तोड़ने, मगर हमें पता है वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो उसकी मम्मी कहती है कि हमें अब आज ही अपना घोंसला यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो उसने कहा वो खुद आएगा तो वो ज़रूर आएगा। और देखते हैं तो किसान आके पेड़ काट भी देता है और पेड़ कट भी जाता है। तो उसकी मम्मी बच्चों को समझाती है कि आज तक कोई इसीलिए नहीं आया क्योंकि वो अपना काम दूसरों पे डाल रहा था, वो दूसरों पे डिपेंडेंट था कि तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, और दूसरा जना करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, और दूसरे के काम को तो कोई प्रायोरिटी देता नहीं है। बट जब इंसान खुद ठान लेता है कि ये काम मुझे ही करना है और मैं ही करूँगा, तब उसे कोई भी पावर रोक नहीं सकती। वो थॉट में इतनी पावर होती है कि कोई भी उसको पावर रोक नहीं सकती। और जब वो खुद के लिए, खुद की प्रोग्रेस के लिए ऐसा संकल्प करता है तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके सपोर्ट में हो जाती है। तो ये चीज़ चिड़िया ने समझ ली और वो वहाँ से एक दिन पहले ही निकल गई। तो इससे मुझे बहुत लर्निंग मिली कि कभी भी मैं पहले क्या करती थी, मम्मी को बोलती थी आपने मुझे टाइम से नहीं उठाया, मुझे ये करना था, मेरे एग्ज़ाम के लिए ये करना था, मगर अपनी चीज़ों के लिए हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो सेल्फ टॉक जो है वो क्या करता है, हमारी सेल्फ हीलिंग करता है। अगर करेक्ट सेल्फ टॉक जो है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो है, उसको एक और वर्ड कहा जाता है सेल्फ हीलिंग, कि अपने आप को खुद हील करो। हाँ, अगर कोई बहुत एक्यूट डिप्रेशन है, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि अपने आप को खुद हील करो,
बट अगर आपको लगता है कि आपको किसी साइकेट्रिस्ट की हेल्प चाहिए और बहुत नेगेटिव साइकिल का चेन चलता जा रहा है जिसको आप समझ नहीं पा रहे, ब्रेक नहीं कर पा रहे, होपलेसनेस फील हो रही है, तो आप किसी को कंसल्ट ज़रूर कर सकते हो, कोई स्पिरिचुअल इंसान को, किसी पावरफुल इंसान को, या किसी डॉक्टर की हेल्प ले सकते हो। बट अगर जो एक ये सेल्फ टॉक है, इसको अगर हम लाइफस्टाइल बना ले, रोज़ करें, तो हम कभी बीमार नहीं हो सकते, क्योंकि एक हमारा कंपेनियन, एक हमारा वेल विशर हमारे साथ हमेशा चल रहा है। हमारे पेरेंट्स कब तक चल सकते हैं हमारे साथ? कभी तो ऐसा होगा कि फ़ोन के नेटवर्क्स बंद हो जाएंगे, हम गाइडेंस लेना चाहते हैं, पर देने वाला भी देना चाहता है, पर हम आपस में बात ही नहीं कर पा रहे। हमारे वेल विशर है बहुत दुनिया में, वो हमारी मदद करना चाहते हैं, पर हम तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे। अभी कोविड हो गया था, और मान लो कोविड के साथ बिजली भी चली जाए, तो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हम किसी तक अपना मैसेज पहुंचाए और कोई हम तक अपना मैसेज पहुंचाए। तो अपनी हीलिंग करने का ज़िम्मा हमें खुद लेना है, अपने आप को ठीक रखने का ज़िम्मा हमें खुद लेना है, अपने आप को खुश रखने का जिम्मेवारी हमें खुद लेनी है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि खुशी मेरी प्रायोरिटी है। मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है कि छोटी छोटी बातों में मैं अपनी इतनी कीमती चीज़ गवा दूँ। हमेशा जब भी कोई बात आती है तो दो चीज़ अपने स्केल्स देखे होंगे ना, तराजू, तो उस पे रखना चाहिए कि एक साइड मेरी खुशी है और एक साइड ये बात है। अपने आप आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी बात है, क्योंकि खुशी मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। मेरे जीवन का लक्ष्य है खुश रहना। ये सब बना लो अपना लक्ष्य, अगर नहीं है तो बना लो। और जब मेरे जीवन का लक्ष्य खुश रहना है, तो बहुत सी बातें हम अपने आप नज़रअंदाज कर देंगे। जिन पे हम पहले रिएक्ट करते थे, उन चीज़ों को हम अपने आप नज़रअंदाज कर देंगे। तो सेल्फ टॉक में दो चीज़ें जैसे मैंने बताया है, एक मैं हूँ और एक मेरा मन है। तो मैं जो हूँ, हमने तो समझ लिया कि हम कंट्रोलर है, इस बॉडी के हम एक कंट्रोलर है, हम मालिक है, या किंग कहो या राजा कहो। इस बॉडी में हम एक सबसे मेन रोल जो है वो हमारा है। उसके बाद हमारा एक मिनिस्टर है, मन। अब ये मन क्या चीज़ है, ये तो हमने पढ़ा नहीं है आज तक, बट आज हम पढ़ भी लेंगे। जो मन है एक सटल ऑर्गन है। सटल माने एक सूक्ष्म ऑर्गन। सूक्ष्म मतलब जो हमें इन आँखों से दिख नहीं सकता। मतलब अब जैसे यहाँ पे हवा है, तो मैं कहूँ कि यहाँ पे हवा दिख रही है आपको, तो दिख तो नहीं रही, बट अगर हम फ़ैन ऑन करेंगे तो हमें फील हो जाएगी। हवा के थ्रू ही जो आवाज़ है वो ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रैवल कर रही है, साउंड हवा के थ्रू ट्रैवल करता है। तो ये सब चीज़ें प्रूफ है कि एयर है इस रूम में। अगर एयर नहीं होगी तो शायद आवाज़ भी ट्रैवल नहीं करेगी, और हम शायद पता नहीं देख भी नहीं पाएंगे एक दूसरे को। तो एक सटल ऑर्गन मतलब जो आंखों से नहीं दिखता। कहाँ पर होता है ये सेंटर ऑफ फोरहेड होता है, जो जहाँ पे हम टीका लगाते हैं, जहाँ पे माताएं टीका लगाती है, वहाँ पे बिल्कुल सेंटर ऑफ फोरहेड। अगर हम इसका सेंटर निकाले स्केल से, तो एकदम वहाँ पे ये लोकेटेड होता है। इतना छोटा होता है कि मुझे लगता है कि कितने अभी तक कोई ऐसा माइक्रोस्कोप बना नहीं है जिससे हम इसकी इमेज को कैप्चर कर पाई। इतना सटल होता है, इतना छोटा दिखने में होता है। और काम क्या होता है इसका, काम को भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्या करता है इसका काम होता है थॉट्स क्रिएट करना। थॉट्स मतलब विचार क्रिएट करना, सोचना। मन का काम है सोचना। सोचना तो सबको आता है, पर हम कॉन्शियसली नहीं सोचते। हम विदाउट अवेयरनेस तो सोचते रहते हैं पूरा दिन, पर जब हम कॉन्शियसली सोचते हैं तो उन थॉट्स में पावर आ जाती है। आपको लगता है थॉट्स में पावर है? हम जो थॉट्स क्रिएट करते हैं उसके अंदर आपको फील होता है कि पावर है? कभी हम सोचते हैं कि आज तो मुझे ये करना ही है। जब ऐसा कोई थॉट करते हैं तो आपको लगता है बॉडी में कोई एनर्जी आ जाती है, आती है ना? तो एक छोटा सा इस पे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करते हैं और आप फील करो कि थॉट में पावर है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जो मैं संकल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें शक्ति है, और वो शक्ति मुझे एक फीलिंग देती है। वो फीलिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। तो एक मिनट के लिए हम कुछ मैं थॉट्स देती हूँ। आप चाहो तो आंखें बंद भी कर सकते हो, आंखें खोल के भी जनरेट कर सकते हो। थॉट्स तो हम वैसे ही कर सकते हैं, आंखें बंद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अपने आप को बोले कि मैं
एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैंने लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और मैं अपने से वादा करता हूँ कि आज से सिर्फ अच्छे काम ही करूँगा। अगर मैंने कोई पास्ट में गलती करी है, किसी को दुख पहुंचाया है, किसी से गलत व्यवहार किया है, तो मैं उससे मन ही मन माफ़ी मांगता हूँ। उसको अपने सामने लाए और उससे माफ़ी मांगे। आज से मैं ये गलती कभी किसी के साथ दोबारा नहीं करूँगा। मैं अपने आप को भी इस गलती के लिए माफ़ करता हूँ। कोई भी बात दिल में हो जो लगता है हमने गलत की, उसके लिए खुद को मैं माफ़ करता हूँ और अपने साथ एक प्रॉमिस करता हूँ कि आज से ये कभी दोबारा नहीं करूँगा। मेरी सोच, मेरा व्यवहार, मेरे बोल हर किसी के साथ बहुत मधुर, बहुत मीठे और बहुत मिलनसार होंगे। मैं सबको अपना परिवार समझ के चलूँगा। संसार में कुछ भी हो जाए, मैं अपनी खुशी को कभी नहीं खोऊंगा। मेरी खुशी मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं एक शांत और स्थिर व्यक्ति हूँ। चाहे प्रकृति में कितनी भी हलचल आए, उथल पथल आए, मगर मैं हमेशा हर परिस्थिति में शांत और स्थिरता का अनुभव करता हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। पहाड़ सी परिस्थिति को भी मैं एकदम कोमल कर सकता हूँ। मेरे पास इतनी शक्ति है जो किसी क्रोध में जलते हुए व्यक्ति को भी मैं अपने मीठे बोल से शीतल कर सकता हूँ। मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। इस धरती पर मेरी प्रेजेंस से सारे लोग खुश हैं, प्रकृति खुश है और सभी मनुष्य खुश है। कैसा महसूस कर रहे हैं? कौन सी फीलिंग जनरेट हो रही है? कोई एक वर्ड देना चाहते हैं? कोई भी बता सकते हैं कुछ भी। पावरफुल, पीसफुल, कामनेस, एक्सटैटिक, वेरी गुड, हैप्पी, कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। तो ये फीलिंग आई ना, कहाँ से आई ये फीलिंग? हाँ, तो हमने पीसफुल थॉट दिया तो पीस जनरेट हो गया। हमने हैप्पी थॉट दिया तो हैप्पीनेस जनरेट हो गई ना। ये तो मैजिक हो गया। तो कर सकते हैं ना ये हम अपने साथ। तो कितना मुश्किल होता है अपने मूड को चेंज करना। एक थॉट की तो बात है ना, कि अपने आप को बोला कि नहीं, मैं ये नहीं हूँ। अगर जैसे मान लो बच्चे आए और कुछ गड़बड़ कर दी और बहुत गुस्सा आ गया कि आज तो मैं इसको मार ही दूंगा, है ना। कई बार पेरेंट्स वायलेंस भी करते हैं, कुछ इन चीज़ से भी मार देते हैं, हाथ से भी मार देते हैं। तो अपने आप को अगर एक थॉट दे दिया कि नहीं, मैं ये व्यक्ति नहीं हूँ, मैं शांत हूँ, तो चेंज हो गया। बस एक थॉट ही तो देना है अपने आप को। तो थॉट से क्या हुआ, एक एनर्जी फ्लो हुई, फील हुआ सबको। एनर्जी हर थॉट में क्रिएट होती है, मगर जब बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं ना, तो उनकी एनर्जी बिल्कुल नलिफाई हो जाती है। अगर हम एक थॉट को सस्टेन करें, जैसे हमने बोला मैं एक शांत इंसान हूँ, मैं हमेशा शांत रहता हूँ, और उसको सस्टेन करो, उसको देखे आंखों से कि बहुत केओस है आसपास, बहुत हलचल हो रही है और मैं शांति में बैठा हुआ हूँ। इस विजन से क्या होगा, शांति जनरेट हो जाएगी और आपके आसपास वाले भी बोलेंगे कि आपसे बड़ी पीसफुल वाइब्रेशन आ रही है। तो यही जनरेट करने की विधि होती है। तो अब जो इसके ऑपोजिट वाली फीलिंग है वो भी जनरेट हो सकती है। कैसे, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कराऊंगी नेगेटिव फीलिंग, बट वैसे आपको थॉट्स बताती हूँ
कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मेरे से तो कोई काम ही नहीं होता। बिल्कुल लो सेल्फ एस्टीम में ले जाएगा ये थॉट आपको कि मैं काम करता हूँ, मेरी कोई अप्रिसिएशन ही नहीं करता, इतनी मेहनत करता हूँ, मेरी कोई तारीफ़ ही नहीं करता, मेरे काम को कोई रिकग्नाइज़ ही नहीं करता, लोगों को मेरी कदर ही नहीं है। ये थॉट्स आते हैं, है ना? तो ये क्या थॉट्स है, ये हमको कैसी फीलिंग देंगे? बिल्कुल हमारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाएगा जो हम कर सकते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इन थॉट से बच के रहना, ये वायरस है, इन थॉट से बच के रहना है। मैंने एक जगह पढ़ा कि नेगेटिव थॉट का एक थॉट भी जनरेट ना हो, इसका ध्यान रखना है कि एक भी गलत संकल्प ना जनरेट हो मन में। ये मेहनत होती है, ये मेहनत खुद की खुद पे करनी है, ये कोई नहीं करेगा हमारे लिए। तो एक भी बुरा संकल्प आया ना, तो वो जैसे क्या होता है, अमृत के उसमें आपने एक ड्रॉप जहर डाल दिया, तो वो अमृत भी सारा बेकार हो जाएगा। इतनी मेहनत से आप अच्छे थॉट्स रख रहे हो और एक ड्रॉप आपने गलत डाला कि बहुत मेहनत कर ली, कुछ रिजल्ट तो दिख नहीं रहा, पता नहीं मेरे को आता भी है ढंग से नहीं आता, तो इसने क्या किया, सारा आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दिया, सेल्फ एस्टीम सारा ख़त्म हो गया। तो मन का हमारा ये काम है, सोचने का काम करता है, ऐसे संकल्प क्रिएट करता है। अब मन को अभी हम कौन कंट्रोल कर रहा था? हम कंट्रोल कर रहे थे ना, हम मन को चला रहे थे ना, हम थॉट दे रहे थे कि मैं शांत हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसे हूँ, और मन उसको समझ रहा था। पर मन कभी कभी तो समझता है, बट कभी कभी क्यों नहीं समझता? ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी मन बहुत तेज चल रहा होता है और रुकता ही नहीं है हमसे? तो उस समय भी अपने आप से ऐसे ही बात करनी होती है। इसको कहते हैं हीलिंग सेल्फ टॉक। कि कभी बहुत आपका लग रहा हो बहुत क्लटर है माइंड में, बहुत सारा कचरा भरा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, तो उसके लिए एक टिप है, जब कई बार हम बात करते हैं और बात नहीं कर पाते मन से, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और उसमें लिख लो। क्योंकि जब हम लिखते हैं, मुझे एक बहुत मतलब एक बहुत ग्रेट पर्सनालिटी ने कहा कि आई प्रैक्टिस दिस एवरी डे एंड यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस। तो मुझे लगा ये इतने उससे बोल रही है तो मैं भी इसको ट्राई करूँ। और मैंने जब ये ट्राई किया फर्स्ट डे, तो उन्होंने मुझे क्या कहा था कि सोने से पहले आप जो भी आपके थॉट्स आते जा रहे हैं, आप पेपर पे लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। जब आपको लगे कि बस सब माइंड पूरा एम्प्टी हो गया, मन पूरा खाली हो गया, कुछ बचा नहीं है अंदर, तब रुकना। तो मैंने सोचा चलो मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ एक बार। तो सोने से थोड़ा आधा घंटा पहले मैंने लिया, लिखा जो जो थॉट आता जा रहा है, आज मैंने ये किया, अच्छा आज उसने मेरे से ऐसे ही बात किया, जो जो मन में आते जा रहे हैं विचार। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, किसी ने हमसे कुछ बुरी तरह से बात करी और उसी समय कोई और चीज़ हो गई हमारे साथ, तो वो थॉट हमारे में जनरेट हुआ कि हमें इंसल्ट फील हुआ, किसी ने हमें डिफेम किया, बट क्या हुआ, वो सप्रेस हो गया और दूसरा थॉट आया, हमारा अटेंशन उसकी तरफ चला गया। तो वो जो थॉट सप्रेस हुआ है, वो एक नेगेटिव थॉट जो सप्रेस हो गया, वो मुझे पूरा दिन खुश नहीं रहने देगा और मेरे को पता भी नहीं चलेगा कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। सब तो ठीक है, पूरा दिन तो अच्छा जा रहा है, बट वो सुबह एक छोटी चीज़ हुई और वो मुझे दिमाग से खिसक गई, उसकी वजह से मेरी पूरे दिन की खुशी चली गई। अब ये थॉट को कैसे पकड़े? नहीं पकड़ सकते। तो अपने आप से पूछना है कि मैं कहाँ से मेरा मूड खराब हुआ आज दिन में। तो ऐसे अगर बैक ट्रैक करते अपने आप को तो एकदम पकड़ लेते। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी। कई बार मैं सोचती थी कि इसमें कितना टाइम वेस्ट होता है, अभी पूरा दिन का सोचूं मैं कि कहाँ से मेरा मूड अपसेट हुआ और अभी मेरी खुशी क्यों नहीं है। तो मैंने देखा, एक बार करके देखा और ऐसी चीज़ पकड़ में आती है उसके बाद कि ये है रूट कॉज। अभी भी मेरे अंदर कंपैरिजन, कंपटीशन है, ये रूट कॉज पे पहुंच जाते हो आप। वहाँ से ऐसे ऐसे चेक करते हैं कि मेरी खुशी किस मोमेंट से गायब हुई, और बैक ट्रैक करते 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 जब पहुँचते हैं कि अच्छा जब उस व्यक्ति ने मुझे ये बोला तब मेरे को ये फीलिंग आई और इस फीलिंग की वजह से मेरा बाकी का दिन डाउन 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 होता चला गया। अब कई बार हम पकड़ नहीं पाते ऐसे थॉट्स को ना, थॉट्स बहुत तेज़ चलते हैं। अभी आप यहाँ बैठे हो, मन से कहीं कहीं घूम के आ सकते हो, है ना। कोई घर में किसी ने कुछ मानो कुछ गैस पे रखा हो तो फटाफट याद आ गया कि अरे फ़ोन पे ला लो, बच्चों को बोल दो गैस बंद कर दे। कितनी चीज़ें आ सकती हैं माइंड में, छोटी छोटी चीज़ें। एग्ज़ाम भी है, ये भी है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है और आती भी है क्योंकि माइंड को फोकस होने की अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती रहती है। एक थॉट, दो थॉट, तीन थॉट, 4-5 थॉट्स तो साइमल्टेनियसली चलते ही रहते हैं। ये तो बहुत ही नेचुरल है हम सबके साथ। इसीलिए हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है।
जो लोग बहुत फोकस्ड होते हैं ना, वो अच्छा 4 घंटे का काम भी 1.5-2 घंटे में कर देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक ही थॉट पे टिके रहते हैं। तो तो जैसे अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जैसे फीलिंग जनरेट हुई इससे, और नेगेटिव थॉट करते हैं तो नेगेटिव फीलिंग जनरेट होती है। तो अब हम इनसे बचे कैसे, मतलब अब हम इस ट्रैप से बचे कैसे। हमने एक नोटबुक ली, जैसे मतलब हम जानना चाहते हैं कि हम कहाँ पे हमारा वीक पॉइंट है, कौन से ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम गड़बड़ कर रहे हैं, मेरे अंदर कौन सी ऐसी बुराई है जिसकी वजह से मेरी हैप्पीनेस गायब हो जाती है। तो जो मैं आपको ट्रिक बता रही थी वो यही थी कि नोटबुक लेके अपने थॉट्स को लिखना शुरू कर दो। जो जिस लैंग्वेज में लिखना चाहता है वो उस लैंग्वेज में लिखे, अपने को समझ आना चाहिए। जितने पेजेस आपको लगता है भर सकते हो उतने पेजेस भरो। फर्स्ट डे सबसे ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि बहुत थॉट्स होते हैं मन में, हमें लगता है कि कुछ नहीं है बट बहुत थॉट्स होते हैं, और आप जब लिखोगे तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि क्या क्या आ रहा है अंदर से, कचड़ा ये सब भरा हुआ है मेरे अंदर। और फिर ऐसा लगता है कि अच्छा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता होती अपने बारे में। और जब हम लिखते हैं ना तो बहुत से फ़ायदे होते हैं इसमें। एक तो जब हम पूरा लिख लेते हैं तो माइंड होता है पूरा साफ हो जाता है, उसके बाद आपको डीप पीसफुल स्लीप आती है। आपको ऐसा लगेगा कि बस अभी एकदम सब खाली हो गया। खाली तो नहीं होता माइंड कभी, मगर आपको ऐसा लगेगा कि बस माइंड अब पूरा खाली हो गया है, अब मैं आराम से सो सकता हूँ। और जब आप उठोगे भी तो इतना फ्रेश फील होगा कि जैसे सोए ही नहीं, ऐसा लगे सो भी लिए और बिल्कुल अभी सोए अभी उठ गए, इतना फ्रेश फील होगा। और दूसरा चीज़ कि आप उसको वापस भी देख सकते हो, जो आपने लिखा है उसको आप देखो और एनालाइज करो कि अच्छा ये सब चलता है मेरे दिमाग में। तो अब क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि क्या मैं अच्छे विचार जनरेट कर सकता हूँ, या मेरा मन, क्या बोलूँ, कचड़े से भरा है। ये अपने आप से पूछो कि क्या मेरे मन में कचरा है, या क्या मेरे मन में अच्छे संकल्प है, या अच्छे संकल्प कर सकता हूँ, या वेस्ट या बेस्ट, दो चीज़ें हो सकती है, या व्यर्थ होगा या समर्थ होगा। दोनों चीज़ें इकट्ठे तो नहीं हो सकती ना, कि कचरा भी हो और कचड़े के अंदर हीरा भी हो, दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती। अच्छा खाने का सामान भी डस्टबिन में पड़ा हो, या तो वो कूड़ा है या तो वो अच्छी चीज़ है। तो अपने आप से सवाल सभी पूछे कि क्या मैं अच्छे संकल्प जनरेट कर सकता हूँ, क्या हमारे पास वो पावर है, या जो बाहर से आया बस वही मैंने कंज्यूम करता रहा और वही पुरानी चाल में चलता रहा। जैसे सब दुखी हो रहे हैं, ये तो ज़माना ही दुख का है, क्या करे, कलयुग चल रहा है ना, बहुत दुख है सबके पास, सभी स्ट्रेस में, तो हम भी स्ट्रेस में, क्या बड़ी बात है। खुशी मुश्किल है, उदास होना तो बड़ा आसान है ऐसे समझते हैं? नहीं ना, ऐसे समझना भी नहीं चाहिए। खुशी तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी, हमने एक संकल्प किया, जनरेट हो गई। और दुख होने के लिए हमें बाहर से परिस्थिति का आना पड़ता है। तो किन चीज़ों पे हम ध्यान रखें जो हम ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर सके। पॉजिटिव सेल्फ टॉक समझ आ गया ना सबको कि कैसे करना है, खुद कर सकते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, इसके लिए बहुत अच्छे एलिवेटेड थॉट्स चाहिए होते हैं, और आजकल हमारे पास एलिवेटेड पॉजिटिव थॉट्स ही नहीं है। आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई एम अ गुड पर्सन, इसके आगे लोग कुछ सोच ही नहीं पाते। अब मैं और क्या अच्छा सोचूं, बहुत मुश्किल है अच्छा सोचना, अच्छे विचार ही नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन है, सुबह जब दिन का शुरुआत होती है तो 7 से 8 एक स्पिरिचुअल क्लास होती है, जिसमें हाईली एलिवेटेड वर्शंस चलते हैं। उन वर्शंस को सब सुनने आते हैं, जो सेवाधारी है, जो यहाँ पे निवासी है, जो बाहर से आते हैं, फैमिली से आते हैं, सब आके उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। ध्यान से बस सुनना है आपको, आप नोट नहीं करना चाहो मत करो, बट आप उसको बस सुनो। तो वो क्या होता है, हमें लगता है कि हमने सुना और कान से चला गया, बट वो माइंड में कहीं ना कहीं कुछ कुछ बातें रह जाती है। और जब हम पूरे दिन में अपना काम करते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिव ऑरा में रखने की कोशिश करती है। नेगेटिविटी का उतना इफेक्ट नहीं आता हमारे ऊपर, क्योंकि कुछ तो अच्छी बातें हैं हमारे पास। तो दिन की शुरुआत कभी भी ऐसे उठते ही सीधा काम करने मत लग जाओ। अगर आप 8 बजे उठते हो तो 1 घंटा पहले करो, 7 बजे उठो, मगर शुरू का 1 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट्स, 20 मिनट्स, नहीं तो 10 मिनट्स
अपने लिए ज़रूर निकालो। जब मैंने अमेज़ॉन ज्वाइन किया तो यहाँ पे कल्चर था कि सभी लीडर्स से आपको 1-on-1 मीटिंग करनी होती है। तो एक लीडर से मीटिंग हुई तो वो बहुत ही उन्होंने अपने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस सुना रहे थे। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जो मतलब आपने लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करी है और बहुत से चैलेंजेस उन्होंने बताए, उन्होंने फेस करे और ओवरकम करे। तो मैंने बोला मैं ऐसा क्या करूं जो आपके जैसा प्रोग्रेस कर सकूं, हर हर्डल को क्रॉस कर सकूं। तो उन्होंने ये बोला कि काम यहाँ पे आपके पास बहुत रहेगा, काम में आपको बहुत प्रेशराइज करेंगे, मगर काम शुरू करने से पहले 1 घंटा अपने लिए निकालो। चाहे कोई कोई कुछ भी बोले आपको, चाहे आपका मैनेजर बोले आज रिलीज है, अभी चाहिए अभी चाहिए, तो बोलते हैं कि जितना भी प्रेशर क्रिएट करे, लेकिन अपने दिन की शुरुआत 1 घंटे की अच्छी चीज़ों से जो आपको पसंद है उन चीज़ों को पढ़ो, उन बुक्स को पढ़ो और उसके बाद ऑफिस का काम ज्वाइन करो। सीधा उठते ही लैपटॉप खोल के काम मत शुरू करो, क्योंकि सुबह उठते ही लैपटॉप शुरू किया, बस वही चीज़ें दिमाग में घूम रही है, तो हमने डोज तो लिया ही नहीं कोई अच्छी चीज़ का। तो हम अच्छे थॉट्स जनरेट कहाँ से कर पाएंगे? जब कुछ सुनेंगे पढ़ेंगे तब तो कुछ अंदर जनरेट कर पाएंगे। तो 3 चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग 3 चीज़ें हैं। आप लोग और भी इस पे सोच सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती है। मुझे लगता है जो हमारे थॉट्स चलते हैं, जैसे जब हम सेल्फ टॉक करते हैं, हमारे अंदर जो विचार हम जनरेट करते हैं वो इन 3 बेसिस पे मेरे हिसाब से जनरेट होते हैं। जो हम देखते हैं फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे जो हम दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं, एक वो जो हम सुनते हैं बातें, न्यूज़ सुन रहे हैं, कोई चीज़ सुन रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं वो, और जो हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई अपना लिटरेचर पढ़ रहे हैं, कोई अपना ऑफिस से रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगेन आई फील दैट देयर कैन बी अदर ऑप्शंस ऑल्सो, बट आई फील दैट मेरे लिए ये 3 चीज़ें मैंने देखा है कि मेजॉरिटी चीज़ें मेरे माइंड में यहाँ से इनपुट हो रही है। जो मैं देख रही हूँ मोबाइल पे, कहीं भी टीवी पे, कहीं भी, जैसे अगर मैं बैठी हूँ और 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं या 2 लोग बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट रहता है आपके ऊपर, आपके माइंड के ऊपर। ऐसा मत सोचो कि आपने देखा बट मैं तो नहीं हूँ ना वहाँ, मैं तो अलग हूँ, बट उसका भी एक इम्पैक्ट रहता है। और नेक्स्ट टाइम हमारे साथ कोई सिमिलर सिचुएशन होती है ना, तो उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर रहता है और हम भी थोड़ा बहुत उससे इन्फ्लुएंस होके बिहेव करते हैं। ये बहुत सटल प्रोसेस चलता है और हमें पता भी नहीं चलता हम कब दूसरों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो ये 3 चीज़ों पे हमें बहुत स्ट्रॉन्ग वो लगाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, चेक पोस्ट। जैसे गाड़ी जाती है ना तो स्टॉप कर देते हैं, तो एक बार स्टॉप कर दो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ इससे मेरे थॉट्स जनरेट होंगे, इन थॉट्स के बेसिस पे मेरी फीलिंग रहेगी, मैं पूरा दिन कैसा महसूस करता हूँ वो इन्हीं चीज़ों पे आधारित रहेगी। तो क्या मुझे ये लेना चाहिए? क्या अगर मैं सुबह उठ के वायलेंस की न्यूज़ देख रहा हूँ तो क्या मैं अपना पूरा दिन ऐसे व्यतीत करना चाहता हूँ? हम न्यूज़ शाम को भी देख सकते हैं, बट सुबह उठते ही अपने आप को फीड करने से हमारा नेचर भी वैसा ही बन जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर हम किसी के साथ गॉसिप कर रहे हैं, अगर हम किसी के बारे में बुराई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अपने आप से पूछ ले कि ये जो मैं सुन रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, ये सब मेरे थॉट प्रोसेस में बनता जाएगा। मेरे थॉट से मेरी फीलिंग्स जनरेट होगी, मेरे फीलिंग से मेरी पर्सनालिटी बनेगी। अगर हम देखें तो थॉट जब जनरेट होता है तो फीलिंग आती है, एक सबने वो एक्सपीरियंस किया, उस फीलिंग के बेस पे हमारा एटीट्यूड बनता है। जैसे हम खुश हो गए तो हमारा एटीट्यूड उस समय 1 सेकेंड के लिए हम जो भी आएगा उससे अच्छे से बात करेंगे, हमारे एक्शंस चेंज हो जाते हैं, हमारे एक्शन से हमारे हैबिट्स डेवलप होते हैं, हमारी हैबिट से हमारी पर्सनालिटी बनती है और हमारी पर्सनालिटी हमारी डेस्टिनी को डिटरमाइन करती है। तो अगर देखा जाए तो एक छोटा सा थॉट हमारी, पता नहीं चल रहा हमें ये कैसे हो रहा है, ये प्रोसेस पीछे चल रहा है माइंड में, तो ये थॉट एक छोटा सा, और अगर हम कॉन्शियसली इसको क्रिएट करें तो ये हमारी डेस्टिनी पूरी 180 डिग्री टर्न हो सकती है। अगर हम उस जो थॉट जो अनकॉन्शियसली अनअवेयर जा रहा है उसको हम कॉन्शियसली करें तो हम जैसा चाहे वैसी अपनी डेस्टिनी बना सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक शांत व्यक्ति बन जाऊँ तो मैं आज से ही करूँगा तो कल सुबह तक मेरे 50% काम हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये कि करते रहो, सालों साल लगे रहो और चलता ही रहेगा ये प्रोसेस। आप एक थॉट करोगे, आपको नेक्स्ट सेकंड उसका रिजल्ट मिलेगा।
वो नेक्स्ट सेकंड आपको मोटिवेट करेगा और अच्छे थॉट्स जनरेट करने के लिए। तो वो पावर हमारे पास है और हमें इस पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए और अपने थॉट्स को एड्रेस करना चाहिए। कई बार हम अपने थॉट्स को दबा देते हैं, जैसे माइंड में थॉट आया हमने दबा दिया, जैसे मैं अभी बता रही थी कि किसी ने कुछ कहा और मेरे को फीलिंग आई, बट उसी समय कुछ और हो गया और मेरा माइंड उस तरफ शिफ्ट हो गया, तो वो फीलिंग तो सप्रेस हो गई ना। बट उस फीलिंग की वजह से मेरे अंदर की जो खुशी है वो चली गई। तो अब मैं उस थॉट को एड्रेस कैसे करूं? तो उस के लिए हमें राइटिंग शुरू करनी चाहिए। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है राइटिंग। हम इसको इतना वैल्यू देते नहीं हैं जितना हमें देना चाहिए। राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जिससे हमें अपनी छोटी छोटी थॉट्स की पकड़ में आते हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ, और जब हमें पता चलता है ना हम ऐसा सोचते हैं तो हम उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। जब हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा अपने आप को बना सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको पता चल गई, देखना, सुनना और पढ़ना। ये 3 चीज़ों से मेरा थॉट पैटर्न बन रहा है। व्हाट आई सी, व्हाट आई हियर एंड व्हाट आई रीड। ये बहुत मेजर इन्फ्लुएंसर्स है कि मैं कैसा सोच सकता हूँ। और जब हम अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे, अच्छी चीज़ें सुनेंगे, तो सेल्फ टॉक हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, एकदम मक्खन की तरह हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि हर समय मेरे साथ मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अकेला हूँ और डर लग रहा है मुझे। आप कॉन्स्टेंटली बातें करते रहोगे उसके साथ। और एक बार जब बात करना शुरू करते हैं अपने माइंड से, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन हो जाता है। इतना इसमें खुशी मिलती है, इसमें इतना प्लेजर होता है इसमें, कि इस प्रोसेस को भी सब बहुत इन्जॉय करते हैं। तो सब अपने में ही बिजी रहते हैं, और जो अपने से अच्छे से बात करता है फिर उन लोगों का व्यवहार दूसरों के साथ भी बहुत अच्छा होता है। तो ये एक हीलिंग प्रोसेस का काम करता है। सिर्फ खुद की हीलिंग नहीं, समाज की हीलिंग होती है। सबसे पहले आप जहाँ बैठे हो आपके परिवार की हीलिंग होती है। आप 4 जनों का घर है, 5-6 जनों का घर है, तो पहले उनकी हीलिंग होती है। फिर आप जहाँ जाते हो, आप ऑफिस में जाते हो, कहीं जाते हो, तो उनकी हीलिंग होती है। उसके बाद ये हीलिंग जो सेल्फ टॉक है, सिर्फ सेल्फ तक नहीं रहता, ये फैलता है, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। और बाकी लोग भी इसको ना जानते हुए भी, ना समझते हुए भी समझ लेते हैं कि ये कुछ कर रहा है अंदर, इसका कुछ ना कुछ अंदर, कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा है ये खुद पे। और उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि देर इज़ सम पॉजिटिविटी दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन। ये बहुत अच्छा। और आप ये एक्सपीरियंस आपने किया होगा कि आप किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, तो थोड़े टाइम में वो भी आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है। रिलेशनशिप हमेशा म्यूचुअल होता है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो और ऊपर से आप उसको बोलते हो, ऊपर से आप फेक करते हो रिलेशनशिप, तो वो मतलब उसका कोई फाउंडेशन नहीं होता। वो दूसरे बंदे को पता होता है, वो भी ऊपर से फेक करता है, आप भी फेक करते हो। तो जो रिलेशनशिप होता है वो हमारे थॉट से ही मेंटेन होता है। और जितना हम खुद से प्यार से बात करते हैं, तो माइंड को हमेशा एक बच्चा समझना है। ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माइंड को हमें एक मैच्योर इंसान नहीं समझना कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। वैसे मन एक बहुत बड़ी शक्ति है। मन कुछ भी करवा सकती है। अगर आपने उसको संकल्प दे दिया, जैसे रात को सोने से पहले आपने उसको संकल्प दे दिया कि कल तुम मुझे ना 3:30 पे उठा देना। एक बार आप ये ट्राई करके देखना, अपने मन को स्ट्रांगली बोलना। या पहले आप एम्प्टी कर लो अपने माइंड को, नोटबुक पे सारा माइंड एम्प्टी कर दो। उसके बाद अपने माइंड को एक थॉट देना कि वेक मी अप एट 3:30, मुझे कल 3:30 उठाना। तो आप देखना ये पावर कैसे काम करती है। उठ जाओगे, एग्जैक्ट अलार्म से पहले उठ जाओगे। तो कुछ तो पावर है ना माइंड के पास। तो वैसे तो बहुत पावरफुल है, बट आप उसको पावरफुल समझ के बात मत करना, आप उसको छोटा बच्चा समझ के बात करना। छोटे बच्चे से कैसे बात करते हैं? प्यार से बात करते हैं। और अगर वो गलती भी करता है तो भी क्या करते हैं? प्यार से ही समझाते हैं कि अरे तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, आज दिन भर तुमने मेरे को बताया ही नहीं, तुम्हारा क्या क्या चल रहा है, चलो आओ बताओ मुझे। ये इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ काउंसलिंग भी बोलते हैं। और अगर ये हमारी एक किंगडम है, तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, एज अ किंग हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अपने मिनिस्टर से रिपोर्ट तो ले कि वो कर क्या रहा था पूरे दिन, कहाँ कहाँ घूम रहा था, क्या क्या किया उसने, कितनी पावर्स है उसने, कहाँ कहाँ गवाई, क्या क्या जमा किया, क्या क्या घाटा किया। तो जब हम पूछना शुरू करेंगे ना, एक दिन भी अगर पूछना शुरू करेंगे, अगले दिन हम बहुत अवेयर रहेंगे, बहुत अवेयरनेस आ जाएगी कि शाम को रिपोर्ट देनी है, इधर उधर नहीं भटकना। आज
आज कुछ फालतू काम नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, क्योंकि शाम को रिपोर्ट देनी है, तो मन आपका ट्रैक पे आ जाएगा। मन को वैसे भी एक घोड़े की तरह दिखाते हैं, बहुत से मैंने देखा है शास्त्रों में दिखाते हैं कि मन एक चंचल घोड़े की तरह है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, रुक नहीं सकता। मन का काम है थॉट्स जनरेट करते रहना, और थॉट्स क्या होते हैं, लहरों की तरह होते हैं। मतलब एक आया फिर समा गया, मतलब जैसे लहर आती है ना, उठती है फिर वापस समा जाती है, फिर उठती है। कोई लहर बहुत गहरी होती है, कोई लहर बहुत छोटी होती है, तो ऐसे ही मन में भी लहरें आती है। तो अगर हमें कोई उसको कंट्रोल करना है तो हमको क्या करना है, उसकी पूरी लगाम को टाइटली पकड़ना है, पूरा चेक रखना है कि तुम सोच क्या रहे हो। मेरी परमिशन के बिना कुछ भी अलाउड नहीं है, हर जगह चेक पोस्ट लगा दो। तो एक बहुत ही अच्छा मैंने ये पढ़ा था कि कैसे इजी बना सकते हैं इस प्रोसेस को, सेल्फ टॉक के प्रोसेस को, कि अपने माइंड का एक टाइम टेबल बना लो। जब हम सुबह उठे, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, बिल्कुल हल्के रूप में लेना है कि आज मैं क्या क्या करूँगा। जैसे जब हम कुकिंग कर रहे हैं तो उस समय माइंड तो बिल्कुल फ्री है, माइंड का तो कोई काम नहीं है, हाथ से काम कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें माइंड का कोई काम नहीं होता, जैसे अगर हम सफाई कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में माइंड का तो कोई काम नहीं है। तो हम माइंड को बिजी रख ले, इन्हीं समय पे मन भागता है। यही समय होता है जिस समय मन कहीं और भाग जाता है, और वो कहाँ भागता है वो हमें पता भी नहीं चलता। और हम लिखेंगे भी तो कितना लिखेंगे, याद ही नहीं आएगा जब हम। और अगर हमें उसको कंट्रोल करना है, हमें एक मास्टर, वैसे तो हम मास्टर है ऑलरेडी, क्योंकि हम बोल रहे हैं वो मेरा मन है, तो मेरा है तो मैं मास्टर हो ही गया। बट मास्टर रियल में बनना है अगर हमें उसका, तो हमें उसकी एक एक एक्टिविटी का चेक रखना है कि वो क्या कर रहा है, कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें उसको पहले से ही सेट करना है कि तुम्हारा इस समय ये काम है, तुम इस समय ऐसा सोचो, तुम इस समय ये करो। कुछ भी थॉट दे सकते हैं हम। अब वो थॉट्स आप कैसे सीखोगे, वो थॉट्स आप अच्छी चीज़ें पढ़ने से सीखोगे। कुछ ना दिन में कोई एक ऐसा समय ज़रूर निकालना है जिसमें हम या तो स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़े, या तो ऐसी चीज़ें पढ़े जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ है, दूसरों की सक्सेस स्टोरीज़ है। नेगेटिव चीज़ें ना पढ़े, क्योंकि नेगेटिविटी ऑलरेडी दुनिया में बहुत है, कहीं ना कहीं से आप ना भी चाहोगे तो भी आप तक पहुंच जाएगी, कोई ना कोई आप तक पहुंचा ही देगा। मगर पॉजिटिविटी के लिए हमको ढूंढना पड़ता है। कोई अच्छा थॉट आया, उसको पढ़ा, उस पर सोचना, उस पर थॉट्स जनरेट किए कि इसी क्या बोलना चाह रहा है इसमें, और कोई बुक पढ़ी, अच्छी बुक्स ढूंढी। और ऐसे ऐसे हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, अपने माइंड को, कि कैसे तुम्हें अच्छा सोचना है। और बहुत अच्छी चीज़ है कि माइंड ट्रेनेबल है, माइंड ट्रेन हो जाता है, सीख जाता है। आप थोड़ा सा उसको बोलोगे ना, जैसे छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं कि आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, आप बोलोगे नहीं अभी ठंड है, अभी नहीं खानी, बीमार हो जाओगे, तो वो बोलेगा नहीं नहीं खानी है, खानी है, खानी है। आप बोलोगे नहीं 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 अभी नहीं खानी, तो खींच खींच के ले जाएगा, वहाँ तक पहुँचा देगा आपको, और रोने लग जाएगा, कुछ करेगा, पूरा अपना एफर्ट करेगा कि आइसक्रीम तो खानी है। आप उसको समझाओ कि नहीं खानी, देखो आप बीमार हो जाओगे, आपको इसके बजाय ना दूसरी चीज़ घर पे बना के खिलाएंगे, ऐसे उसको समझाओ। उसको डांटना नहीं है, मन डांटने से नहीं मानता। मन डांटने से क्या करता है, अगर उस समय सप्रेस भी हो जाता है, ऐसा एक्सप्लोड होता है फिर थोड़े टाइम बाद कि जो जो चीज़ें पहले कभी नहीं करी वो सब भी करने लग जाता है। सप्रेस नहीं करना मन को, और मन सप्रेस होता भी नहीं है, टेम्पररी सप्रेस होता है। आपको लगता है मैंने तो दबा दिया, देखो मैंने बहुत अच्छा किया। मन को प्यार से सुधारो, मन को बहुत अच्छा सेइंग है कि मन को मारो नहीं, मन को सुधारो। मन को अच्छे काम दो कि अच्छा तुम अभी ये मत करो, तुम अभी इसको थोड़ा सा पोस्टपोन करो। अगर मन कभी बिल्कुल नहीं मानता कि ये करना ही करना है, या जैसे कभी कोई बुरी चीज़ के लिए बोलते हैं ना कि टाल दो, उसको टाल दो, तो वैसे ही मन को भी टाल दिया करो, नहीं अभी नहीं, 1 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद फिर बोल दो, 1 घंटे बाद। तो ऐसे ही उसको बुरी चीज़ों से खिसकाते रहो, और अच्छी चीज़ों को अभी, कल नहीं आज, आज नहीं अभी। कोई अच्छी चीज़ है ना तो उसमें मन आलस करता है कि अभी पैर दुख रहे हैं, अभी कमर में दर्द है, अगर सोऊंगा नहीं तो कल नहीं उठ पाऊंगा, ऐसे ऐसे गंदे गंदे बहाने आते हैं। तो ये मन की आदत है पुरानी, ये सब कुक करने के, एक्सक्यूजेस कुक करने के। तो उसको समझाना है कि देखो कमर दर्द तो कल भी रहेगा, पैर में, ऐसे ऐसे प्यार से उससे बात करनी है। मतलब ये सब तो आप जानते ही होंगे कैसे करनी है, बट ये तरीका है उससे बात करने का कि देखो ये बहाना तो कल भी रहेगा, अगर यही बहाने करते रहोगे तो एक दिन तो काल भी आ जाएगा, तो भी तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा।
तो करना है तो अभी करना है, कुछ करके उसे प्यार से मोटिवेट करना है। और थोड़े से समय के बाद आप फील करोगे कि अरे ये तो मेरी बात सुनने लग गया सारी, ये तो मेरी सारी बात मान रहा है। और एक एसेट बन जाएगा आपका मन आपके लिए, कि आपको लगेगा कि मैं इसको कमांड कर रहा हूँ और ये मेरी बात मान रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाएगा आपका और आपके माइंड के साथ। तो फिर आपको सेल्फ टॉक सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका नेचुरल सेल्फ टॉक चलता ही रहेगा। मतलब आप इंट्रोवर्ट होके आप लोगों के साथ बैठे बैठे भी आपका सेल्फ टॉक चलता रहेगा। और जो नेगेटिव सेल्फ टॉक होता है ना, उससे अपने आप को बचाना है। वीक थॉट्स जो होते हैं, वेस्ट थॉट्स जो होते हैं, ये बहुत बड़ी सिकनेस है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। कमज़ोर संकल्प हमारी सारी शक्तियों का दहन कर देती है। एक कमज़ोर संकल्प हमारे सारे सेल्फ एस्टीम को डाउन कर देती है। इनसे अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करना है। अगर हम मान लो हमने किसी ने हमको कहा भी कि जैसे हमने एक प्रेजेंटेशन बना के दी, किसी ने हमको कहा कि तुमसे तो बन ही नहीं सकती, तुमने बहुत बेकार बनाई है, कुछ बोल दिया, उसको दिल में मत रखो उस बात को। उसको सुना, अच्छा ठीक है, हम आगे देखेंगे। उस बात को हम जब पकड़ लेते हैं और दिल में रख लेते हैं ना, तो वो बीमारी बन जाती है, वो एक डिजीज़ बन जाती है। तो बुरी बात को चित्त पे मत रखो, बुरी बात को लेट गो करो। कैसे करेंगे लेट गो? ये भी बहुत बड़ा वो है, लेट गो नहीं होता लेट गो भी, कि भाई छोड़ो छोड़ो, अरे छूट ही नहीं रहा, कैसे छोड़े। तो छोटी छोटी चीज़ों में फुल स्टॉप लगाने की आदत डालनी है। जैसे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आई, एक किसी ने कुछ किया, वही चले जा रहा है चले जा रहा है, वो चीज़ निकल ही नहीं रही माइंड से। बहुत अच्छी चीज़ें भी हो गई उसके बाद, मगर वो जो उस समय पेन मिला वो भूलता ही नहीं है। इतना सीवियर पेन उस समय मिला किसी चीज़ से, कुछ भी हो सकता है, बट वो भूल ही नहीं रहा। तो क्या करना है, फुल स्टॉप की विधि सीखनी है। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस लगा देते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा, इतने सारे लोगों के सामने क्यों किया, मैंने ऐसा क्या कहा था। तो ये क्वेश्चंस को नलिफाई करना है और फुल स्टॉप लगाना है कि जो हो गया उसमें मेरा बहुत 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 बेनिफिट है। मैं यहाँ पे इस दुनिया में सीखने आया हूँ, मैं स्कूल में आया हूँ, ये एक स्कूल है। अभी ये हॉस्पिटल था ना, अभी एक स्कूल हो गया। तो ये मेरा एक स्कूल है, इसमें मुझे हर सेकंड, हर घड़ी, हर व्यक्ति से सीखना है। मैं स्कूलिंग पे हूँ। ये थॉट भी एक बहुत पावरफुल थॉट है। इससे आप कभी भी आपको फील नहीं, हम कभी सोचते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, तब हमारे ना टकराव होता है दूसरों के साथ कि अरे मुझे कैसे बोल दिया। जब हम सोचते हैं ना कि हम छोटे हैं, 60 साल के हो, 70 साल के हो, तो भी समझो मैं छोटा हूँ। मन भी तो बच्चा ही है ना, मन थोड़ी कोई ऐसे 80 ईयर्स ओल्ड का 80 ईयर्स ओल्ड है। 80 ईयर्स ओल्ड का भी मन छोटा बच्चा है, उसका भी मन बच्चा है। तो खुद भी बच्चे बन जाओ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं इस पूरी दुनिया में एक स्कूल में आया हूँ, जो मेरे को जो जो सिखाता जा रहा है मैं वो सीखता जा रहा हूँ। कोई कुछ डांटता है तो समझ लो कि क्यों डांट रहा है। अगर अपनी फ्रस्ट्रेशन है तो वो भी समझ लो, स्मार्ट बन जाओ कि ना अपनी किस बेचारा अपना ही परेशान है, चलो हम इसको ब्लेसिंग दे देते हैं, इसका जो कोई बिगड़ा काम हो वो बन जाए। अगर वो हमारी कोई गलती पॉइंट आउट कर रहा है तो उसको समझ लो कि अगर मैं स्कूलिंग में हूँ, मेरी टीचर बन के वो आया है, मुझे कुछ सिखा रहा है, तो मैं ना सीखूँ तो ये कितनी मेरे लिए कितना वेस्ट हो जाएगा। तो इस मौके को मैं यूज़ करके अपने को ग्रो करने में लगाता हूँ। तभी एक कहावत भी है कि जब कोई पत्थर आप पे फेंके तो आप उसको इकट्ठा कर लो, उन पत्थरों से आप स्टेयर केस बना के उस पर ऊपर चढ़ते चलो। होता यही है, जो हमारे को चैलेंजेस आते हैं बाहर से, उसमें बस हम नेगेटिव थॉट क्रिएट कर देते हैं और वहाँ पे हम मात खा जाते हैं। अगर उस नेगेटिव सिचुएशन को हम ये समझे कि ये मेरे को आगे बढ़ाने आई है, उस समय हम ये नहीं सोच पाते। अभी तो बोलना बड़ा आसान लग रहा है यहाँ पे बैठ के, मगर जब वो परिस्थिति आती है तब हम ये बात भूल जाते हैं कि ये जो भी हो रहा है, हर चीज़ में, इस दुनिया में जो भी हो रहा है, हर चीज़ में बेनिफिट है, कल्याण है, कल्याण है। अगर कल्याण नहीं दिख रहा, थोड़े समय बाद दिखेगा, मगर आप फेथ रखो, हर चीज़ में बेनिफिट है। कोई अकल्याण किसी का हो नहीं सकता, किसी के साथ अनफेयर हो नहीं सकता। हर चीज़ में हर किसी का कल्याण है। तो अगर हम उस चीज़ को, जो भी आ रही है हमारे पास, उसको एक पॉजिटिव नज़रिए से देखें, तो हमें हमारी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। फिर हम हर सेकंड ग्रो करते जाएंगे। अच्छा, इसने मेरे से ऐसे व्यवहार किया, तो ऐसा जब कोई व्यवहार करता है तब ऐसे रिएक्ट करना होता है। सीख लिया हमने, तो नेक्स्ट टाइम कोई करेगा तो हम तो माहिर हो गए। एक स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हर परिस्थिति में। और जब आप ऑब्जर्व करना, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक टाइप का क्वेश्चन पेपर एक ही बार आता है,
मतलब अगर आप किसी चीज़ को पास कर लेते हो, जैसे किसी ने आपको बहुत ज़्यादा डांट दिया और आपको फ़र्क नहीं पड़ा, आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो इस पे कि मुझे आई विल बी नॉट बी अफेक्टेड, मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, तो नेक्स्ट टाइम से जब वो सिचुएशंस आती है ना, आप इंजॉय करना स्टार्ट करते हो, एक इंजॉयमेंट स्टार्ट होती है। और जब ये चीज़ें हमारे अंदर से निकलती है ना, जैसे जेलसी, कंपैरिजन, तेरा मेरा करना, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, जब ये हमारे अंदर से निकलती है, अभी तो हमको पता ही नहीं है हमारे अंदर है ना, बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर है, हम जानते ही नहीं है। जब हम लिखना शुरू करेंगे, खुद से बात करना शुरू करेंगे, तब हमको पकड़ आएगा क्या क्या है, और जब हमको पकड़ आएगा ना, तो हम निकाल भी देंगे आसानी से। और जब ये चीज़ें निकलेंगी ना, तब आपको ऐसा अनुभव होगा कि जगह सेम है, व्यक्ति भी सेम है, सारे लोग सेम है, मगर पता नहीं बड़ा अच्छा लग रहा है आज इनसे मिलके, कल भी ऐसे ही थे, ये यहीं मिले थे, मगर आज वही चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है, ये पेड़ भी वैसा ही था, कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। तो क्या होता है कि क्योंकि हैप्पीनेस जो है वो हमारा ट्रेजर है, हमारा एक खजाना है, हमारे पास है, मगर वो हम एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लटर है, बहुत कचरा यहाँ पे भरा हुआ है। तो वो कचरे की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास असली चीज़ है वो हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे। तो जैसे ये साफ होगा, खुशी हमें लानी नहीं पड़ेगी, खरीदनी नहीं पड़ेगी, खुशी इमर्ज हो जाएगी अपने आप। अंदर की जो खुशी है ना, एटर्नल खुशी है, टेम्पररी खुशी नहीं, जो एटर्नल खुशी है वो इमर्ज हो जाएगी। कैसे इमर्ज होगी? इस क्लटर को फ्री करने से। जो यहाँ पे हमारा बहुत सोचते रहते, सारी एनर्जी ख़त्म कर देते सोच सोच के, इतना सोचते, बोलते कि अरे नेगेटिव तो नहीं सोच रहे ना, किसी का बुरा नहीं सोच रहे, अरे जो वेस्ट सोच रहे वो कितना नुकसान कर रहा है, पूरा दिन भर जो काम कर सकते थे उसकी सारी एनर्जी उसने तुम्हारी 10 मिनट में ख़त्म कर दी, कितना नुकसान है ये। मेंटल एनर्जी ख़त्म होना कितना बड़ा नुकसान है। और सोचते हैं अरे किसी के बारे में बुरा तो नहीं सोचा ना, कुछ बुरा तो नहीं बोल रहे किसी से, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, मगर जो वेस्ट सोच रहे हैं ये भी एक सिकनेस है, कितना ड्रेन कर देती है हमें। तो इन दो चीज़ों से हमें, नेगेटिव से तो बचना ही है, नेगेटिव तो बहुत खतरा है, बहुत डेंजरस है, नेगेटिव तो जहर के बराबर है, मगर वेस्ट भी हमें अच्छा बनने नहीं देता। जो वेस्ट थॉट्स है ना, ये हमारी सारी एनर्जी खा जाता है, हमें कोई प्रोग्रेस करने नहीं देता। कोई अगर मैं वेस्ट थॉट्स जनरेट कर रही हूँ तो साधारण ही रहूँगी, मैं कभी ऊंच तो नहीं सोच पाऊँगी। जो बोलते हैं कि ग्रेट पीपल थिंक अलाइक, तो मैं कभी ग्रेट तो बन ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा तो वेस्ट में ही सारा टाइम जा रहा है। एक किसी ने कुछ बोल दिया, बस उसी पे मेरा पूरा दिन चला गया, सोचते सारी ताकत अपनी ख़त्म कर दी। तो मैं ग्रेट कब बनूंगी? मैं अपनी रियल हैप्पीनेस को कब एक्सपीरियंस करूंगी? तो ये जो सेल्फ टॉक की विधि है, ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर की चीज़ों को पकड़ेंगे। बहुत छोटी विधि है, इस ऐसा कोई साइंस नहीं है बहुत बड़ा, मगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो काम में बिजी हो जाते हैं, फिर ऐसे लगता है कि चलो टेंशन लेना भी नेचुरली है, सभी टेंशन में है, दुखी होना नेचुरली है। एक और बहुत बहुत बीमारी, कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस, जो मैं अपने एज के लोगों में देखती हूँ कि निरंतर उदास है, किसी चीज़ में खुश नहीं है, सरकार से निराश है, सरकार के प्रोजेक्ट से निराश है, अपने घर वालों से निराश, हर चीज़ में कंप्लेन है। ये मैं बहुत देखती हूँ, शायद आप लोगों में ना हो, बट दिल्ली गुड़गांव में बहुत ट्रेंड है, कंप्लेनिंग नेचर इन एवरीथिंग। रोड्स ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो गाड़ी ठीक नहीं चलाता, ये ठीक नहीं है, देखो रिक्शा कैसे चलाता है, देखो इसके पास लाइसेंस नहीं है, सब इलीगल है, वो है, कितना ज़्यादा हमारे पास है। अरे मेरा क्या मतलब है इन सब चीज़ों से, कितना वेस्ट है ये मेरे लिए। तो इन सब चीज़ों से अपनी बचाव करनी है। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, इस पे इतना ध्यान रखना है कि बिल्कुल जैसे हमारा कोई एग्ज़ाम होता है ना, वह उस समय जितना अटेंशन होता है हमें, वैसा अटेंशन हमें रखना है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आई थिंक ओनली 20 minutes are left. So I'll end with this, that we should always keep asking ourselves this question. हमेशा अपने आप से ये पूछना चाहिए कि इस समय मेरा मन में क्या है, क्या मैं अच्छे संकल्प है या क्या मेरे मन में इस समय कचरा है, पूछना चाहिए। और अपने आप आंसर आएगा कि ये तो मेरे मतलब का नहीं है, कचरा ही है मेरे मन में अभी, इसको बाहर निकालो, इसको साफ़ करो। फिर अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे कि कैसे साफ़ करो। वो सब नॉलेज है
आपके पास, वो सब अपने आप इमर्ज होता है। बट ये उसको चेक कैसे करना है, तो उसको चेक हम टाइम टू टाइम अटेंशन से करेंगे कि तुम अभी क्या सोच रहे हो। उससे बच्चे की तरह उससे बात करनी है कि अभी तुम क्यों उदास हो, क्या हो गया, किसने तुम्हें क्या बोल दिया। ऐसे उससे बात करेंगे तो वो बताना भी शुरू कर देगा। और ऐसी बातें हम दूसरों से भी करते हैं, है ना। जब कोई बोलता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, तो ऐसी बातें करते हैं मुझसे, क्यों डिप्रेशन में हो, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे ही पूछते हैं। बस अब ये बातें हमें खुद से करनी है। तो आई विल वाइंड अप हियर। इफ देर आर एनी क्वेश्चंस, हाँ प्लीज। जैसे आप जो भी देखना है तो मुझे नहीं देखना है, हाँ इट्स लाइक वेरी नेचुरल राइट। हाँ, मैं कुछ देख रहा हूँ, आई डोंट इवन सी, देखते हुए मुझे पता नहीं चलता कि ये नेगेटिव है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके 1 घंटे बाद या 2 घंटे हाँ बाद या 3 घंटे बाद वो हाँ थॉट बिल्कुल। जैसे मैंने कुछ एक्सीडेंट देख लिया तो इट्स नेचुरल राइट, हाँ, जा रहा हूँ, लेकिन फिर घर जाके ही याद आता है। कनेक्शन कनेक्शन डेवलप होते चले तो ये आपको ना कैसे पता चलेगा, ये करेक्ट बोल रहे हो आप, ये सबके साथ होता होगा कि आपने कोई विजन देखा सड़क पे, बट आप चले गए क्योंकि आप व्हीकल चला रहे हो, बट उसका एक इम्पैक्ट रहता है माइंड पे और थॉट प्रोसेस पे, और कहीं ना कहीं हम बेचैन रहते हैं कि अरे उसके साथ क्या हुआ क्या हुआ, ये सोचते रहते हैं। तो ये थॉट्स हम कैसे, जब हम रात को बैठ के लिखेंगे ना कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, एक बार आप ज़रूर करके देखना, ये सब जाके एक बार ये ज़रूर करना। भले ही आपको कितने भी पेजेस लगे, एक बार जो इधर है ना उसको सबको पेपर पे निकाल दो। आपको एक बार के लिए आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे आपकी क्या क्वालिटी चल रही है। तो जब ये चीज़ें निकलती है पेपर पे तो आपको लगेगा अच्छा ये थॉट अभी भी मेरे माइंड में है। एकदम आ जाएगा पेपर पे और आपको दिखेगा कि अच्छा वो एक्सीडेंट की बात मेरे दिमाग से निकली नहीं है अभी। तो फिर आप अपने आप को बात करो। जैसे एक छोटे बच्चा है, वो बोल रहा है मेरे मन से बात नहीं निकली, तो आप उसको कैसे समझाएंगे, है ना कुछ तो आप बोलेंगे ना उसको। तो बस अपने आप को उस समय अलग करके, अपने आप से अलग करके कि मेरे मन में जो है उसको मैं बाहर बिठा देता हूँ, ये मेरा माइंड है। बहुत लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो लेटर लिखते हैं, टू माई माइंड यू आर वेरी ब्यूटिफुल, प्लीज़ ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। बहुत अलग अलग लोगों के पास टेक्निक्स होती है। एक उन्होंने बुक खरीदी हुई है, टू माई माइंड, ऐसे बुक लिटरली लोग ऐसे करते हैं। बहुत क्रिएटिव तरीका है लोगों के पास पॉजिटिव रहने का, क्योंकि हमें इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता अभी कि खुश रहना, पॉजिटिव रहना कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे काम हो जाएंगे हमारे, हम पॉजिटिव रहेंगे ना तो सारे काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे। मगर अगर हम खुश नहीं रहेंगे ना तो सारे काम भले हो भी जाए मगर हमने कोई ब्लेसिंग तो कमाई नहीं, कोई अपना भी हमें खुशी है नहीं। तो मतलब ऐसे है कि बस लाइफ शुरू हुई है और एक दिन ख़त्म हो जाएगी, तो इन्जॉय तो हमने की नहीं। लाइफ तो इन्जॉयमेंट है ना। तो हम जब पेपर पे लिखेंगे तो हमें पता पकड़ आ जाएगा कि ये मेरा थॉट गया नहीं है, एक्सीडेंट का थॉट मैंने देखा बट ये मैंने अभी तक मेरे माइंड से निकला नहीं है। तो उसको प्यार से बोलो कि इसको ना भूल जाओ, वो जो जहाँ भी होगा वो ठीक होगा। अगर ऐसा कुछ थॉट आ रहा है वो दोबारा आएगा, ऐसा नहीं कि एक बार आपने बोला तो वो चला जाएगा, वो फिर से आएगा, उसको दोबारा बोलो। जैसे छोटा बच्चा होता है वैसे ही उसको बोलो, फिर वो 3 बार आएगा 4 बार आएगा, उसको हर बार बोलते रहो। वो थॉट एकदम लो लो होते होते ख़त्म हो जाएगा। और मैंने बहुत सी ऐसी ऐप्स देखी है जो ट्रैक करती है कि ये वो, बट मैंने देखा है जितना आप यहाँ पे अटेंशन रखोगे ना वो बेस्ट है। किसी चीज़ पे रिलाई मत करो। मान लो कल ऐप ना चले तो हमारी तो सारा वो बंद हो जाएगा कि भाई मेरी ऐप टैप कर रही है कि मैंने आज क्या क्या किया। किसी भी इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस, गैजेट पे डिपेंडेंट मत रहो। मतलब मेरा सजेशन है ये, बाकी किसी के लिए यूज़फुल भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जितना हो सके इंडिपेंडेंट रहो कि कल को दुनिया का सब चीज़ ख़त्म हो जाए तो भी मेरी खुशी ना जा पाए। और कोई कुछ पूछना चाहता है? तो हमारी दादी थी, गुलजार दादी जिनका नाम था, और उनका एक बहुत फेमस स्लोगन था। उनका फेस हमेशा स्माइलिंग रहता था, उनके फेस पे कभी किसी ने टेंशन नहीं देखा और बहुत केयर फ्री रहती थी। तो उनका एक बहुत अच्छा स्लोगन है, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। और फिर उसके बाद वो कहती थी कि प्राण भी चले जाए तो भी खुशी ना जाए, क्योंकि अगर आप मरते मरते भी खुश रहेंगे तो आपकी डेड बॉडी देख के भी सोचेंगे अरे वाह कितनी ग्रेट सोल रही है, देखो स्माइलिंग फेस के साथ ही लेफ्ट द बॉडी। तो उसमें भी बहुत लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो मतलब अगर डेथ भी आ जाए मेरे पास तो भी मेरी खुशी ना जाए, ये हमें अपना स्लोगन बना लेना चाहिए। और कोई कुछ पूछना चाहता है तो फिर हम मेडिटेशन कर सकते हैं।
तो मेडिटेशन में हम क्या करेंगे, हम अपने को अच्छे थॉट्स देना सीखेंगे। अभी तो आपको 3-4 थॉट्स हम देंगे, मगर आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे कोर्स करो, यहाँ की जो मॉर्निंग क्लास है वो अभी आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ज्वाइन करने के लिए आपको 7 डेज़ का कोर्स करना पड़ेगा। तो अभी आप आएंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो आप राजयोगा का मेडिटेशन कोर्स कीजिए और उसके बाद समझिए कि अच्छे संकल्प कैसे जनरेट करने हैं। ठीक है, अपना सारा ध्यान मस्तक के बीच में ले आए। मेरा मन यहीं बैठा हुआ है। यहीं बैठे बैठे मैं अपने मन से बातें कर रही हूँ। कितनी भी सामने भीड़ हो, कितने भी लोगों के बीच हो आप, पर आपका मन किसी को नजर नहीं आ रहा। कितना सीक्रेटिव टॉक है ये, किसी को पता भी नहीं चल रहा और मैं मन ही मन अपने मन से बातें कर रही हूँ। ये एक सीक्रेट प्लेस है जहाँ पे हम जो चाहे अपने मन से बात कर सकते हैं और हमारा मन जो चाहे हमें बता सकता है। अपने मन से पूछे, अरे मन, तुझे कैसा महसूस हो रहा है? क्या तू खुश है? अगर खुश है तो किस बात से खुश है? अगर खुश नहीं है तो क्यों खुश नहीं है? खुशी तो मेरी अपनी चीज है, तो इनको छोटी छोटी बातों में क्यों गवाता है? बातों का तो काम ही है आना और जाना, पर आने और जाने वाले लोगों के लिए तू अपनी चीज क्यों गवा देता है? ये तो तेरी अपनी प्रॉपर्टी है, इसे हमेशा पकड़ के रख। कुछ भी हो जाए, खुशी ना जाए। कुछ भी हो जाए, खुशी ना जाए। चाहे प्राण भी चले जाए तो भी ये खुशी ना जाए। तू हमेशा खुद को खुश और हल्का महसूस कर। ये खुशी ही तेरा श्रृंगार है। जब तू खुश रहता है तब मैं अच्छे अच्छे काम कर पाता हूँ। जब तू दुखी होता है तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ। ऐ मेरे मन, आज से तू प्रण ले ले। कुछ भी कर, मगर इस खुशी को मत जाने दे। इस खुशी से ही तेरा जीवन संवरता है। इस खुशी की खुशबू तेरे आसपास के हर व्यक्ति को महसूस होती है। ये खुशी मेरी ताकत है
इसको कभी ना छोड़। ये तो परमात्मा का एक गिफ्ट है। इस गिफ्ट को सदा यूज करते रहे। खुश रह और खुशी बांटता चल। ये जो खुशी का खजाना है, ये बांटने से खत्म नहीं होता। तेरे आसपास जो भी आए, जिससे भी तू मिले, उसको खुश करने की कोशिश कर। बस मेरा यही काम है, खुश रहना और खुशी बांटना। कोई भी मेरे पास आए तो नाराज होकर ना जाए, रूठ कर ना जाए। मेरा यही काम है कि हर किसी को दिल से खुश करना। हर व्यक्ति को जो मेरे संपर्क में आता है, उसको दिल से खुशी का खजाना बांटना। और तू देख, तेरा यह खजाना बांटने से बढ़ता ही चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। बस खुश रहना है और खुशी बांटनी है। यही मेरी लाइफ का मिशन है। ना किसी को दुख देना है, ना किसी का दिया हुआ दुख मुझे लेना है। कोई दुख देता है तो अपने मन के दरवाजे पे नो एंट्री का बोर्ड लगा दे। उसे बोल, नॉट अलाउड। किसी का भी दुख अपने मन में नहीं रख। ये मन तो परमात्मा ने खुश रहने के लिए दिया है। इसे हमेशा खुशी के खजाने से भरपूर रख। इतना भरपूर रख कि ये ओवरफ्लो होता रहे। हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन खुशी बहती चली जाए, बहती चली जाए। और हमारे आसपास के सभी लोग महसूस करें कि जैसे हम खुशी के अनंत सागर है और खुशी के खजाने से एकदम भरपूर है। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, खुश रहने वाला, खुशी बांटने वाला, खुश नसीब हूँ। बहुत भाग्यवान होते हैं वो लोग जो खुश रहते हैं, और उनसे भी भाग्यवान वो होते हैं जो इस खजाने को बांटते हैं। मैं तो पद्मा पदम भाग्यवान हूँ जो ये खुशी का खजाना मेरे पास है और मैं इसे बांट सकता हूँ। ऐ मन, बस आज से तू इसी लक्ष्य में लग जा। कुछ भी हो जाए, खुशी ना जाए। कुछ भी हो जाए, खुशी ना जाए।